मोक्ष चारिणी અનંત ભાવ ભરી વિતરાગ વાણીની વંદના કરીને આપણે એમાં આજે પ્રવેશ કરીશું. પુનઃ એ જ ભાવો સાથે આજે વિશેષ સઘન થઈને, વિશેષ ગંભીર થઈને, ચંદ્રવત નિર્મલ, સૂર્યવત વ્યાપ્ત, સાગરવત ગંભીર એવા વીર પ્રભુનું ધ્યાન ધરતા ધરતા આપણે આગળ ચાલીશું. વધુ ગંભીર થવા માટે આપણે જ્યાં બેઠા છીએ ખુરશી ઉપર કે નીચે તે એક લોગસનો કાવસક કરીશું. એ ધ્યાનમાં જવા માટે જરૂરી છે. બેઠા બેઠા ઊભા ઊભા પણ થઈ શકે એમ છે. જ્યાં છીએ ત્યાં અહીંથી પછી બોલાશે. પહેલાં એક લોગસનો કાવસક મૌનમાં કરીશું અને આગળ ચાલીશું. આપણે પ્રભુ વીર સાધના સ્મરણાર્થમ કરેમી કાવસગમ અન્નથ ઉત્સીયણમ નિસસીયણમ ખાસ્યણમ છીયણમ જંભાયણમ ઉડ્ડયણમ વાયનિસગેણમ ભમલીએ પિત્તમુચ્છાએ સુમેહિમ અંગ સંચાલેહિમ સુમેહિમ ખેલ સંચાલેહિમ સુમેહિમ દિઠ્ઠ સંચાલેહિમ એવમાયેહિમ આગારેહિમ અભગ્ગો અવિરાયો હુજ્જમે કાવસગ્ગો જાવ અરિહંતાણમ ભગવંતાણમ નમુક્કારણ ન પારેમી તાવ કાયમ ઠાણેણમ મોણેણમ ઝાણેણમ. એક લોગસ અથવા 4 નૌકારનો કાવકસ અપ્પાણમ ભોસિરામી. लोगस उज्जोय गरी लोगस उज्जोय गरी दम्मतिथयरे जिणे अरिहन्ते कित्तैस्सं चौवीसंपि केवली उसवमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सियलसिज्जं स वा सुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं दम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासन्तः वध्यमानं च एवं मये अभिथुया विहुय रयमला पहीण झरमरणा
चौविसंपि जिणवरा तिथयरामे पश्यन्तु कित्तियवन्द्य मह्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलैरा आयच्चेषु अह्यं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु આરોગ્ય બોહિલાભમ તમાહી વરમુત્તમમ દિંતુ. આ પ્રાર્થના આપણે કરી છે આરોગ્ય, બોધિલાભ અને ઉત્તમ સમાધિ પામવા માટેની. આરોગ્ય પ્રથમ મૂક્યું છે સૂત્રકારે. આરોગ્ય વિના કોઈ સાધના થઈ શકતી નથી. બોધિલાભને પછી અને સમાધિને પછી. પ્રભુએ આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો છે એમાં આરોગ્યની ઉપેક્ષા નહીં, આરોગ્યની યત્ના બતાવી છે. અને એ યત્ના આપણે જોઈશું એમને જીવનના સાધના કાળમાં. આપણે સાધના કાળમાં આગળ ચાલવું છે તે પહેલાં ગઈકાલનું નાનકડું પુનરાવર્તન કરી લઈએ આપણે. એ જ સાગરમાં ડૂબેલું મંદિર જીન શાસનનું, એમાંથી ધીમે ધીમે ઉપર આવી રહેલું મંદિર, આપણા હૃદય મંદિરમાં સ્થાપન કરેલું મંદિર, અને ક્ષત્રિયકુંડ ગ્રામમાં સિદ્ધાર્થ મહારાજાના રાજપ્રાસાદમાં રહેલું જીન મંદિર, પાર્શ્વનાથ પરમાત્માનું જીન મંદિર. સિદ્ધાર્થ મહારાજા પાર્શ્વનાથ ભગવાનના અનુયાયી હતા. એમની જીન પૂજા એમના મહેલમાં થતી હતી. અને ત્યાંથી જ આપણી યાત્રા આગળ ચાલે છે. ત્રિશલા માતાના સ્વપ્નો, ભગવાનનું બાળપણ, એમની ક્રીડા, યુવાવસ્થા આવતા યશોદાનો પ્રસંગ, યશોદાનું પાણી ગ્રહણ, કુળમાં ધર્મની વાર્તા, ધર્મની ચર્ચા, પ્રિયદર્શાનો જન્મ અને સિદ્ધાર્થ મહારાજા ત્રિશલા માતાનું સ્વર્ગગમન. આપણે જાણવું આવશ્યક છે કે તીર્થંકરના માતા પિતા એ મોક્ષગામી જ હોય. એક ભાવ સ્વર્ગે જઈને એ મોક્ષે પામવાના મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં. જે માતાએ આપણા પૂજ્ય પરમાત્માને જન્મ આપ્યો એની મહત્તા ઓછી નથી. એક બાલિકાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો દિલ્હીની ઇન્ટરનેશનલ જૈન કોન્ફરન્સમાં મુનિ સુશીલ કુમારની હાજરીમાં. ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના અધિપતિ ઇન્દુ જૈન અધ્યક્ષ સ્થાને હતા. વર્ષાબેન શાહ અમદાવાદના એ અતિથિ રૂપે હતા. મહિલાઓની બેઠક ચાલી રહી હતી, વિમેન્સ સેશન ચાલતું હતું. એક બાલિકાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો સ્ટેજ પર આવીને જ કે આપ બધા બહેનોની, મહિલાઓની મહિમા ગાવા માટે એકત્ર થયા છો. હું પણ એક નાની બાલિકા છું. મને પૂછવાનું મન થાય છે કે આપણે તીર્થંકરની બધી જ શાસન દેવીઓની પૂજા કરીએ છીએ, ઉત્તમ છે. ચક્રેશ્વરી માતાથી માંડીને સિદ્ધાયિકા માતા સુધી, પદ્માવતી માતા સુધી આવશ્યક છે, ઉત્તમ છે, શાસન રક્ષિકાઓ છે આપણી. પરંતુ તીર્થંકરની જનિતાની પૂજા ક્યાં કરીએ છીએ આપણે? કોઈ જગ્યાએ ભારતમાં કોઈ મંદિરમાં ત્રિશલા માતાનું મંદિર છે? કોઈ જગ્યાએ મરુદય માતાનું મંદિર છે? ક્યાંક હાથી પર બેસાડ્યા હશે મરુદય માતાને ભગવાનની સામે. મરુદેવાથી માંડીને ત્રિશલા સુધીના કોઈ મંદિરો ખરા ક્યાંય? એની મહત્તા નહીં. બાલિકાનો પ્રશ્ન સાંભળીને અધ્યક્ષની સભા આખી દંગ થઈ ગઈ. અધ્યક્ષે કહ્યું આવો પ્રશ્ન કોઈ અમને પૂછ્યો નથી. સાચી વાત છે બાલિકા, તું આ અધ્યક્ષસ્થાને તું બેસ, અમે ઉઠી જઈએ છીએ. ઇન્દુ જૈન અને વર્ષાબેન શાહ અધ્યક્ષસ્થાને ઊભા થઈ ગયા અને બાલિકાને અધ્યક્ષસ્થાને બેસાડી અને એની પાસે સભા ચલાવરાવી. એનું ચિત્ર મારી પાસે છે. બાલિકા કોણ હતી એનું પ્રશ્ન મહત્વનો નથી, પરંતુ અહીંયા એ પ્રશ્ન મૂક્યો કે ત્રિશલા માતાની અને મરુદેવા માતા, બધા માતાઓની મહિમા આપણે ભૂલી ચૂક્યા છીએ. ત્યારે આપણી પાસે એક સ્તોત્ર છે, મંગલાષ્ટક સ્તોત્ર. એનું રેકોર્ડિંગ અમે કર્યું છે.
એમાં તીર્થંકરના માતા પિતા બધાની વંદનાઓ છે. સિદ્ધાર્થ મહારાજાની પણ, કૃષ્ણા માતાની પણ, શિવાદેવા માતાની પણ, બધા જ માતાઓની, બધા પિતાઓની. અને મંગલાષ્ટક આપણા મંગળ કાર્યોમાં એ ગવાય છે, વગાડાય છે, બોલાય છે. વિવાહ પ્રસંગમાં બોલાય છે, વાસ્તુ પ્રસંગમાં બોલાય છે. અહીંયા મહત્તા એટલી હતી ભગવાનની માતાની. એ માતા માટે ભગવાને કેટલો બધો જન્મ પહેલાંથી માંડીને અને દીક્ષા લીધી ત્યાં સુધી કેટલો બધો ભક્તિભાવ સાચવ્યો. એ બતાવવા માટે કે માતા પિતાની પૂજા, માતા પિતાની ભક્તિ એ બાળક માટે અત્યંત આવશ્યક કર્તવ્ય છે. એ બાળક ભૂલી જતો હોય તો એ ભૂલ કરે છે. માતા પિતા અમૃત છાયામાં, એનું અવનિમાં કોઈ મૂલ નહીં. એ માતા પિતા ભૂલી જાય છે જે બાળક, એ બિચારો કમભાગી બની જાય છે. માતા પિતાની આ જ મહિમા, આવો જ મહિમા આ કાળમાં બહુ ઓછાને જાણ હશે. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ બતાવ્યો પોતાના જીવનમાં. એમને પોતાની માતાની પોતાની દીક્ષા લેવી હતી, માતાની આજ્ઞા મેળવવા ગયા, માતાએ ના કહી ન લીધી. અને માતાની બીમારીમાં માતાને ખાટલે બેસીને માતાના પગ દાબતા દાબતા માતાને પણ જ્ઞાન થાય અને પોતાનું આગળ વધાય, એ ભાવનાથી એમણે પદ લખ્યું. આપણે જે ગાઈએ છીએ, અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે. એ માતાને ચરણે બેસીને એમણે લખ્યું છે. અને માતાને પમાડી ગયા. અને છેલ્લે જ્યારે જીવન છોડ્યું એમણે 33 વર્ષની ઉંમરે રાજકોટમાં, ત્યારે છેલ્લી ભલામણ પોતાના ભાઈને કહે છે, મનસુખ માતાનું ધ્યાન રાખજે. બીજી કોઈ ભલામણ નથી કરતા. મનસુખ માતાનું ધ્યાન રાખજે. એમણે ભગવાન મહાવીરનો બોધ જાણે જીવનમાં ઉતાર્યો, માનું ધ્યાન રાખવાનું, માતા પિતાની ભક્તિનો. અને અહીંયા આની સાથે જ આપણે આ ભક્તિનો આગ્રહ આપણા જીવનમાં ઉતારવાનો છે. માતા પિતાની ભક્તિ પ્રભુ ભગવાન મહાવીરે આપણને શીખવી છે. અને એ પછી એ મોટા ભાઈની પણ ભક્તિ, મોટા ભાઈના કહેવાથી ઘરમાં રહી ગયા. એમની આજ્ઞા પછી એટલું નહીં, યશોદાને પ્રિયદર્શનાની ક્ષમાપના સાથે એની પણ સંમતિ મેળવીને પ્રભુ આગળ ચાલ્યા છે. અને અહીંથી આપણી યાત્રા આગળ ચાલે છે. અને અહીંથી આગળ પ્રભુ ચાલે છે. જ્ઞાત ખંડવનથી આગળ નીકળી ગયા છે. પ્રતિજ્ઞાઓ પહેલાં લીધી છે કે 12 વર્ષ સુધી, જ્યાં સુધી મને કેવળ જ્ઞાન નહીં થાય ત્યાં સુધી આ શરીરની સેવા શુશ્રૂષા નહીં કરું. શરીરમાં કોઈ પણ જાતનો રાગ નહીં રાખું. શરીર રાગનું પહેલું કારણ. એ રાગ છોડીને પોતે આરોગ્યની આખી મહત્તા બતાવવાના છે. શરીરનો રાગ છોડીને એ સાધનામાં અહીંથી આપણે આગળ જઈએ છીએ. અને પ્રભુ વિહાર કરતાં કરતાં સાંજના એક ગ્રામે પહોંચે છે. સાંજ તો પડી જવા આવી હતી. અને ત્યાં રાતવાસો રહે છે. પિતાના સિદ્ધાર્થ મહારાજાના પરિચિત એવા ત્યાં એ કુટીરોના ગ્રામપતિ હતા. એમણે વિનંતી કરી કે આપ ચાતુર્માસ મારે ત્યાં બિરાજો. પ્રભુએ કહ્યું, હું જોઈશું. વચન જેવું આપ્યું અને આગળ વિહાર કરી ગયા. અને પછી ચાતુર્માસ સમય આવ્યો ત્યારે ફરી વચન પાળવા માટે ત્યાં આવ્યા. એની કુટીરમાં રહ્યા, ઝૂંપડીમાં રહ્યા. અને આવતા વેદ જ ભગવાન ધ્યાનસ્થ થઈ ગયા. ભગવાન સદા સતત ધ્યાનમાં રહ્યા છે. મોટે ભાગે ખડગાસનમાં, કાયોત્સર્ગમાં ઊભા ઊભા, ક્યારેક જ બેઠા બેઠા. અને ક્યારેક જ્યારે કેવળ જ્ઞાન પામે ત્યારે કેમ બેઠા છે એની વાત આપણે પછી કરીશું. એ ધ્યાનમાં ઊભા છે. પ્રતિમા ધ્યાનમાં દિવસ ને રાત ચાલ્યા જાય છે. ભગવાનનું ધ્યાન પોતાના શરીર પર નથી તો ઝૂંપડી પર તો ક્યાંથી હોય. આજુબાજુની જે ગાયો હતી, બળદો હતા, એ ગાયો બધી ભૂખી, ક્યાંય ઘાસ ન મળ્યું. આ કુટીર ઉપર ઘાસ પુષ્કળ હતું એટલે ઘાસ ખાવા માટે આગળ આવવા માંડી. અને ઘાસ ખાઈને ઝૂંપડીને એકદમ સૂની કરી નાખી. પ્રભુ તો ધ્યાનમાં જ ઊભા છે. એમને ઝૂંપડીનું ધ્યાન નથી, ઘાસનું ધ્યાન નથી, ગાયોનું ધ્યાન નથી. કેવળ પોતાનું જ ધ્યાન છે, સ્વયંનું ધ્યાન છે. અને ત્યાં એ વખતે એ કુટીરના પતિ, ગ્રામપતિ આવે છે અને એમને કહે છે, ઉલાહના ઉપાલંબ આપીને, થોડો ઠપકો આપીને, આપ તો સિદ્ધાર્થ મહારાજાના પુત્ર છો, ક્ષત્રિય છો, રાજકુમાર છો. રાજકુમાર તો બધાનું રક્ષણ કરે, આખી પ્રજાનું રક્ષણ કરે. આપની ઝૂંપડીનું રક્ષણ કરવા માટે સમર્થ નથી. અને પ્રભુને ત્યારે થયું, બોલ્યા કશું નહીં. પ્રભુને થયું અહીંયા અપ્રીતિ થઈ છે, પ્રેમ નથી રહ્યો. અપ્રીતિ થઈ ત્યાં રહેવું નહીં.
ત્યાંથી ચાલ્યા જવું. પ્રભુ ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા જાય છે મૌન રહીને અને સંકલ્પ કરે છે કે જ્યાં અપ્રીતિ થાય ત્યાં રહેવું નહીં. એ વખતે એમણે વધારે પોતાની પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી છે. अप्रतिकर स्थान में अब से नहीं रहूंगा, सदा ध्यान लीन रहूंगा, सदा मौन रहूंगा, हाथ में ही भोजन करूंगा करपात्र, और गृहस्थों का विनय नहीं करूंगा. साधु को गृहस्थों का विनय नहीं करना होता है. कम से कम इतना संकल्प तो करेंगे हम आज. आगे बात आने वाली है कि भगवान महावीर का अगर मानते हैं, इन कत्ल खानों से बनी दवाइयां हम उपयोग में नहीं लेंगे. रक्त से बनी कंपनी वाले बनाना बनाए, हम जैनी हैं, दवाई का उपयोग नहीं करेंगे. साधु की बात हमने कही. हमने अपने एक स्वजन को देखा, बड़ा क्रांतिकारी था. शील रक्षा करने के लिए, किसी की इज्जत बताने के लिए, किसी बहन को गुंडे लूटने आए थे, वो गुंडों को उसने मार दिया था. एक बहन की शील रक्षा करने गुंडों को मार दिया था. खुद जब बीमार पड़ा, कर्मयोग से जीवन जाने का समय आ गया, कहता है कि मेरी शरीर में किसी भी हिंसक दवाई का बूंद नहीं जाना चाहिए. लिवर स्टेक हो या कुछ भी हो, मेरे शरीर में एक हिंसक दवाई जानी नहीं चाहिए, एक बूंद भी. उनके बड़े भाई ने प्रतिज्ञा ली कि तुम्हारी शरीर में बूंद जाने नहीं देंगे हिंसा की. और उसी प्रकार उसी भावना से उसने बाद में नौकार मंत्र का 4-5 घंटे ध्यान धून करते करते देह त्याग कर दिया. ये बात मैं सच्ची घटनाएं कहता हूँ, एक आचार्य साधु की और एक गृहस्थ युवक की. जो संकल्प है तुम दवाओं से मुक्त हो सकते हैं. हमें आज बहुत से बड़ी बात सीखनी है भगवान महावीर के जीवन से. और जीव दया और प्राणी दया हमारे जीवन में प्रधान है. भवे खेद प्राणी दया, ત્યાં आत्मार्थ निवास. आत्म सिद्धि में सिमझ ये बात चौक करके कहते हैं, जीवे भवे खेद प्राणी दया, ત્યાં आत्मार्थ निवास. जहाँ प्राणी दया है वहाँ आत्मार्थ का निवास है. तो यहाँ हमें प्राणी दया की बात आएगी भगवान के जीवन से. उसको अपनाना है. और भगवान जब आगे चलते हैं तो मौन लेकर चले हैं, ध्यान में जाते हैं, घास में आहार करते हैं, और ये आएगा आगे अभिग्रह लेकर करते हैं जहाँ जहाँ करते हैं. आहार तो बहुत ही कम किया है, बहुत ही कम किया है इतने 12.5 सालों में. आंकड़ा देंगे आपको अंत में. वो भी बहुत बहुत कम. और अल्पाहार मिताहार हम लोग खाते तो बहुत हैं, ज़्यादा अधिकतर खा लेते हैं, फिर रोग से बीमार होते हैं. भगवान ने पहला रास्ता ही बताया ओणोदरी तप का. कम खाना, मिताहार खाना, आधा पेट खाली रखना. ये बात हम भूल चुके हैं. फिर रात्रि भोजन करते और भी बढ़ा देते हैं. फिर ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में आ चुकी हैं. तो यहाँ हमें स्वास्थ्य के लिए आरोग्य बोहि लाभम की जो बात की, भगवान का जीवन हमें शिक्षा देता है. कम से कम आहार लेना है, मित आहार लेना है, परिमित आहार लेना है. इस प्रकार आहार का जय करना है. आहार छोड़े या न छोड़े, शक्ति हो तो तप करें या न करें, परंतु जो ले वो कम करते हैं, अल्पाहार मिताहार करते हैं, तो ये उपवास के बराबर तप हो जाता है. उणोदरी तप उपवास के बराबर हो जाएगा. हम केवल उपवास को मानते, शरीर के लंघन को हमने तप मान लिया है. शरीर के लंघन से पार आत्मा के उपवास हैं. भगवान वही उपवास बताने वाले हमें. आत्मा का होश रख करके भगवान के तप और उपवास निकले हैं. भगवान ने उपवास के बाद न कभी आमंत्रण पत्रिका भिजवाई किसी को, और न कहीं पर अपना मान सम्मान करवाया है. कहीं उल्लेख कल्पसूत्र में कहीं पर भगवान के इतने उपवास के बाद पालने के समय, पालने के बाद बड़ा बड़ा हो हल्ला हो गया है कहीं पर. आज हमें बहुत कुछ सिखाते, भगवान का जीवन से सीखना है हमें. तप करना है, तप का निषेध नहीं है. भगवान ने तप बताया, ज्ञान दर्शन चाहिए तप भगवान ने स्वयं किया है. तप ऐसे करना है कि गुप्त रूप से करना है, पता भी न चले क्या तप किया है. हमारे सामने गुरु स्थान में एक और बड़ी हस्ती रही है, उनकी छोटी चरित्र यहाँ पढ़ी आपको दूंगा मैं. उस हस्ती ने 1 साल तप किया. 1 साल तप किया विषस्थानक का. विषस्थानक तप जानते, एक दिन उपवास, एक दिन आहार. उपवास के दिन तो उपवास ही है, आहार के दिन पालने में केवल 1 ही दाना लेना मूंग का या चावल का, 1 ही दाना. फिर उपवास, दूसरे दिन 2 दाने दूसरे पालने में, फिर उपवास, तीसरे उपवास पालने में 3 दाने खाली मूंग के चावल के. वैसे 20 दाने के 20 दाने हो गए ज़्यादा से ज़्यादा. 20 दाने यानी हम थोड़ा मुट्ठी में थोड़ा सौंफ खा ले उतना ही. 20 दाने से उनका पूरा हो गया. फिर बाद में उतर जाएंगे 20, 19, 18. ऐसे वर्षी तप किया 1 साल तक.
हम वर्षित कैसे करते हैं? प्राणायाम में कितना चाहिए हमको खाने पीने के लिए? एक उपवास के प्राणायाम में कितना खाने पीने चाहिए हमारा? और बेमेल भोजन, फिर वहाँ पर सब खाना पीना चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए और वहाँ चाय भी चाहिए, गर्म चाय भी चाहिए, ठंडा भी चाहिए, गर्म भी चाहिए। तो हमारे पारने कैसे बन चुके हैं? तो यहाँ पर इस आधुनिक काल की इस महान हस्ती ने अभी अभी उन्होंने काल धर्म किया, अभी अभी समाधि में प्राप्त किया कुछ साल पहले, ऐसे उन्होंने वर्षित्व किया। आयम्बिल किया तो 1 साल आयम्बिल एक ही धान से, और खुद श्राविका थी, बनाती थी, किसी को पता नहीं आयम्बिल है नहीं है। 1 साल तक पता नहीं चल कि आयम्बिल चल रहा है। तो हम एक आयम्बिल कहेंगे ढिंढोरा पिटने, हमारा जो आयम्बिल है ओली चल रही है हमारी। ओली अपने लिए है, अच्छा है, करी दो। ढिंढोरा पिटने क्या आवश्यकता है? चुपचाप करेंगे हम ओली करनी है तो, अपनी आत्मा कर्म निर्जरा के लिए कर रहे हैं। तो भगवान महावीर ने स्वयं बताया, इन महान हस्तियों ने अपनाया इस काल में भी। इसलिए कहते हैं इस काल में भी संभव है। हम ये नहीं कहेंगे काल ऐसा है इसमें संभव नहीं है, इस काल में भी संभव है। भगवान महावीर की बात में हम 2 बातें लेकर आगे चलते हैं। एक तो मिताहार, अल्पाहार, गुप्त आहार, गुप्त तपश्चर्या। दूसरी बात प्राणियों पर दया की। वो बार बार ये बात हमारे सामने आएगी, हम अनुभव करेंगे। आगे चलते हैं, भगवान आगे पधारते हैं। वहाँ से निकल गए हैं 5 प्रतिज्ञा फिर से लेकर के कि मौन रहूँगा, जहाँ प्रीति नहीं होंगी वहाँ नहीं रहूँगा, अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहूँगा, प्रीति नहीं रही चले जाऊँगा वहाँ से। धन्यवाद देना चाहिए यहाँ के 1-2 आयोजकों को। एक जगह प्रीति नहीं मिली वो तो हम चले जाएंगे, वहाँ और जगह स्थान करेंगे, और यहाँ पधार गए। जहाँ प्रीति नहीं दिखी वहाँ से काम छोड़ दिया। तो हमें क्यों आधार रखना चाहिए? किसी का आधार आशा और उनकी क्या कीजिए, ज्ञान सुधारस पीजिए। तो भगवान ने ये आदेश दिया जो आनंद गंज ने अपनाया, आशा और उनकी क्या कीजिए, ज्ञान सुधारस पीजिए। आशा और की क्या कीजिए, आशा और की क्या कीजिए, ज्ञान सुधारस पीजिए रे, ज्ञान सुधारस पीजिए। आशा और की क्या कीजिए। किसी और की आशा किए बिना प्रभु चले हैं अप्रतिकर स्थान में नहीं रहने का संकल्प करके, प्रतिज्ञा करके, और अभी चले हैं और घोर साधना में, घोर परिसर उपसर्ग के साथ चल रहे हैं। और चलते चलते प्रभु आगे पहुंचते हैं और वहाँ हम पाते हैं कि घोर वनों में वे कैसे घूमते हैं, कैसे वहाँ पर उपसर्ग के बीच में उपसर्ग आते रहते। घोर वनों में पैदल घूमे, पैरों में लिए लाली, मान मिले अपमान मिले या देवे भले कोई गाली, देवे भले कोई गाली। पंथ था उसका जंगल झाड़ी, पंथ था उसका जंगल झाड़ी, कंकड़ कंटक वाला, कंकड़ कंटक वाला। कभी कभी था साथ में रहता मंखली पुत्र गौशाला। आफत और उपसर्ग की सेना, आफत और उपसर्ग की सेना, पद पद उसे पुचकारत थी। आंधी तूफान मेघ गर्जन से, आंधी तूफान मेघ गर्जन से, कुदरत भी ललकारती थी, कुदरत भी ललकारती थी। घोर भयानक संग
संकट के बीच आत्म साधना चलती थी। दहर हलाहल को पी जाकर अखियां अमृत झरती थी। दहर हलाहल को पी जाकर अखियां अमृत झरती थी। प्रभु की अखियां अमृत झरती थी। अखियां अमृत झरती थी। प्रेम की पावन धारा निरंतर पापी के पाप प्रक्षालती थी। मैत्री करुणा की भावना उसकी डूबते डूबते बेड़े उबारती थी। डूबते बेड़े उबारती। चंडकोशी के सन्मुख प्रभु पधारते हैं और चंडकोशी की जितनी कथा हम जानते हैं उससे कहीं अधिक जानने योग्य है। चंडकोशी कौन था? न केवल पूर्वजन्म का तापस, उसके पहले का साधु, परंतु उसकी कथा और है। हम जानेंगे चंडकोशी की कथा क्या है। चंडकोशी, उसके पूर्व जन्म का इतिहास तो हम सब जानते हैं कि उसके पूर्व जन्म में वह एक तापस था। उस तापस के मन में अपना जो उपवन था उसके प्रति इतनी ममता कि उस उपवन में से न वह किसी को कभी एक फूल तोड़ने देता, न कभी किसी को एक पत्ती भी तोड़ने देता। अगर किसी ने थोड़ा सा भी नुकसान उसको किया तो फिर खत्म, उसके पीछे वो पड़ जाता। इसकी इतनी इतनी ममता, उसी ममता ने उसका अंत किया था, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन उसके पहले के जन्म में वह एक जैन साधु था। यह भी शायद आप सब लोग जानते हैं। जैन साधु वे भी बड़े साधक थे और वृद्धावस्था में, ढलती अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली थी। लेकिन उस दीक्षा के पहले वह एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम था गोभद्र। वह इतना पवित्र जीवन जीता था, अयाचक जीवन जीता था, नितांत निस्पृह जीवन जीता था। संसार था, उसकी पत्नी थी, लेकिन सद्भाग्य से पत्नी भी उसे ऐसी मिली थी कि जो पति का जीवन था पूर्णतः वह अपने पति के जीवन का अनुसरण करती थी। और किसी भी प्रकार से पति तो अयाचक था, निस्पृही था, बहुत परोपकारी था। जिस किसी को भी आवश्यकता हो दौड़कर उसका काम करता था, लेकिन बदले में वह एक पैसे की भी अपेक्षा नहीं रखता था। दिन भर में एक जून भोजन अगर मिल गया तो वह दूसरे जून की परवाह नहीं करता था। लेकिन संसार इस तरह से नहीं चलता है। और हुआ भी ऐसा कि पत्नी सगर्भा हुई और पत्नी को ये लगा कि जीवन में इस तरह से काम नहीं चलता है, और पति को उसने विनंती की, पति से प्रार्थना की कि अब के जीवन के लिए हम इस प्रकार अगर जीवन बिताएंगे तो नहीं चलेगा। आप कहीं ना कहीं जाकर के याचना करिए। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को याचना करने में किसी लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। लेकिन गोभद्र ने कहा, नहीं, मैं किसी के सामने जाकर हाथ कभी नहीं फैलाऊंगा, कुछ भी कहो। पत्नी ने कहा, ठीक है, हाथ आप मत फैलाइए। आपकी जो प्रतिज्ञा है, आपके जो नियम है, आपके जो सिद्धांत है, उनको तोड़ने के लिए मैं कभी नहीं कहूंगी। लेकिन एक रास्ता मैं आपको बताती हूँ कि आप वाराणसी नगरी में जाइए। वो धर्म की नगरी है, वह यात्रा की नगरी है, वह पवित्र मंदिरों की नगरी है। और वहाँ अपने पूर्वजों के लिए अनेक लोग आते हैं
और वहां आकर के पूजा इत्यादि करते हैं, तो वे लोग कुछ न कुछ शायद अगर आपको दें, या वे इस तरह से नदी में कुछ फेंकते हैं, करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर आपको कुछ भी धन प्राप्त हो जाए तो उतना ही धन एक प्रसूति के समय के लिए और आगे जाकर के बालक के जीवन के लिए काफी हो जाएगा। ठीक है, निकल पड़ा थोड़ा सा पाथेय लेकर के, लेकिन कर्म योग ऐसा कि वह और कहीं फंस गया। वो बड़ी बहुत लंबी कहानी है, एक बड़ा सा पुस्तक बन जाए इतनी लंबी कहानी है। लेकिन किसी भी प्रकार उसे कुछ ऐसे लोगों से मिलना हुआ और फिर वहां से वह एक स्थान में इस तरह से गया कि जहां से उसे उपहार स्वरूप, दान में या भिक्षा में नहीं, उपहार स्वरूप उस नारी ने बहुत सारा धन दिया और वह धन लेकर के वह अपनी पत्नी से मिलने अपने गांव आने के लिए वापस निकला। इस समय में इतना लंबा समय बीत चुका था और पत्नी, हम जानते हैं कि घर की अवस्था कैसी थी और सगर्भावस्था में उसने किस प्रकार दिन बिताए होंगे, ये सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। पड़ोसियों की मदद से किसी भी प्रकार दिन बीत गए, लेकिन प्रसूति के आने आने तक वह फिर जीवित नहीं रही, उसकी मृत्यु हो गई। और जो गोभद्र जब घर पर आया तो उसने देखा उसका घर खाली पड़ा है। बहुत उत्साह था, मैं इतना सारा धन लेकर के आया हूं, अब पत्नी भी प्रसन्न होगी, जीवन भी आराम से चलेगा। लेकिन कर्मयोग कुछ ऐसे थे कि मनुष्य सोचता है कुछ, होता है कुछ। पड़ोसियों ने आकर के कहा, गोभद्र आपने बहुत विलंब कर दिया, आपकी पत्नी आपका नाम जपते जपते प्रसूति में ही इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। गोभद्र से इस आघात को सहन करना उसके लिए बहुत ही कठिन था। टूट पड़ा, रो उठा, विलाप करता रहा, दिनों तक विलाप करता रहा। और अंत में, वैसे भी समय जो है वह दुखों का एक इलाज है, दुखों का एक उपचार है। और पड़ोसियों ने भी उसे आकर के समझाया, भैया क्यों इस तरह से विलाप करते हो, उसकी आत्मा भी आपके विलाप को देख करके व्यथित होती होगी। आप अब विलाप को छोड़िए और उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करिए। तो इस तरह से वह निकल पड़ा। अपना जो सारा धन उसने प्राप्त किया था वह भी उसने गंगा नदी में बहा दिया, ब्राह्मणों को दान में दे दिया और निकल पड़ा। और सद्भाग्य से व्यथित मन को लेकर जब वह जा रहा था तो उसे सुनने को मिला एक जैन मुनि का व्याख्यान। वही बैठ गया और जब मुनि जी का व्याख्यान पूर्ण हुआ तो उनके पास जाकर, उनके चरणों में जाकर के गिर पड़ा, प्रभु मुझे मेरी आत्मा की शांति प्राप्त हो, मेरे मन को शांति प्राप्त हो, ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए। जैन मुनि समझ गए। उन्होंने बहुत सारे सांत्वन भरे कुछ उदाहरण दिए कि कर्मों का खेल बहुत निराला होता है। और उनका व्याख्यान सुनते 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 उसने दीक्षा धारण कर ली। और वही गोभद्र आकर के, जो हम जानते हैं वह मुनि, वही मुनि यह गोभद्र है। और फिर आप जानते हैं कि शाम के समय एक दिन जब भिक्षा गोचरी लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक छोटी सी मेंढकी उनके पैरों के तले कुचल गई। और ये सारी जग प्रसिद्ध कथा है। तो कुचल गई और बाल मुनि ने उसके लिए उसने उनको सूचना दी कि आपके पैरों के नीचे मेंढकी कुचल गई है। नहीं नहीं नहीं, तब 2-3 बार जब उस बाल मुनि ने उनको याद दिलाया तब उनका कोप जाग उठा और प्रतिक्रमण करते करते ही वे उठे और बाल मुनि को मारने के लिए दौड़े। बाल मुनि जीवन बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भागा। और फिर आगे की कथा आप सब जानते हैं। वह मुनि, उन मुनि की वहीं पर मुनि वहां से काल कर गए। लेकिन जिस क्रोध के भावों को लेकर के उन्होंने काल किया था उसका यह परिणाम। और वे उस उपवन में उस तापस के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और उस तापस का नाम था कौशिक। कौशिक अपने उपवन की इतनी देखभाल करता था, जो मैंने पहले ही कहा और आप सब जानते भी हैं। और
एक दिन जब वह बाहर गया हुआ था तो जो लोग आज तक उस उपवन के फूल पत्ती का उपयोग नहीं कर सकते थे, उनमें से कुछ किशोर, कुछ युवान जो बड़े मिस्चीवियस होते हैं, तो उन्होंने कहा चलो आज समय का हम फायदा उठाए, लाभ उठाए, और उन्होंने उपवन में आकर के पूरा उपवन खत्म कर दिया। चारों ओर डालियां, पत्तियां, फूल सब कुछ पड़ा हुआ था। जब कौशिक वहां से वापस आया तो उसने देखा कि ये क्या हुआ। उसका क्रोध भड़क उठा और हाथ में जो भी हथियार मिला लेकर के भागा, और जो भी उसके मार्ग में आया सबको मारने के लिए दौड़ने लगा। और फिर उसी हाथ में आई हुई उस कुल्हाड़ी से जब वह भाग रहा था, अचानक गिर पड़ा और उसी कुल्हाड़ी के आघात से उसकी मृत्यु हुई। अब जो उपवन की ममता उसके मन में थी, उस ममता के कारण और उस क्रोध के विभावों के कारण उस कौशिक ने उसी उपवन में एक नाग के रूप में जन्म लिया। और क्योंकि उस नाग में इतना गुस्सा था और वह दृष्टिविष सर्प था, इस वजह से सूर्य के सामने देख करके जिसके भी प्रति वह नजर डालता, जिसके भी प्रति वह दृष्टि फेंकता, उसकी वहीं की वहीं मृत्यु हो जाती। तो लोग सोचने लगे कि अरे ये तो मानो कौशिक ही आ गया है, और कौशिक आ गया है और इतना प्रचंड उसका क्रोध है, इस वजह से उसका नाम पड़ गया चंड कौशिक। और अनेक लोगों की हत्या, मृत्यु का कारण बनते हुए जब लोग इतने त्रस्त हो गए कि सभी ने उस उपवन में जाना छोड़ दिया, और तब भगवान महावीर उस चंड कौशिक का उद्धार करने की उनकी जो कल्पना थी, उनकी जो इच्छा थी कि इस चंड कौशिक का उद्धार होना ही चाहिए, तो उस उपवन की ओर चले। आगे की कथा आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब उस मार्ग की ओर चले तो लोगों ने रोका, स्वामी मत जाइए उस मार्ग पर, वहां तो इतना भयंकर दृष्टि विष सर्प रहता है, आप वहां न जाइए, आप और किसी और मार्ग का स्वीकार करें, और कोई मार्ग ले लीजिए। लेकिन महावीर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, उन्हें कहाँ किसी की राय की आवश्यकता थी। वे तो आगे चले चले और वहां सामने खड़ा था दृष्टिविष सर्प चंड कौशिक। चंड कौशिक ने सामने कायोत्सर्ग में खड़े हुए भगवान को फुफकार करके उनके पैर पर दंश दिए, और दंश देते ही जैसे भगवान का करुणा का सारा प्रवाह बहता हो, वैसे रक्त की नहीं दूध की धारा निकली। होता ही है अतिशय तीर्थंकरों का, उनके रक्त मांस दूध के समान उज्जवल होते हैं, लेकिन यहाँ तो दूध था, करुणा का प्रतीक था। चंड कौशिक को उठाना था, बुझाना था, दूध बहाया। चंड कौशिक आश्चर्य में रह गया, ये मुझे दंश देते हुए भी कुछ कहता नहीं है और दंश देता है। भगवान का मौन ही बोल रहा था। इतने में एक ही शब्द मौन में से निकला, बुझ बुझ चंड कौशिया, बुझ बुझ, अपने को पहचान, तू कौन था, कहाँ आ गया है अब। भगवान के दो ही शब्द जाति स्मृति ज्ञान के कारण बन गए। शास्त्रकार कहते हैं जाति स्मृति ज्ञान 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। किसी महापुरुष के शब्द सुनने से, किसी दृश्य को देखने से, और तीसरा है ध्यान में वहापोह करने से। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, ये सोचते सोचते, चिंतन करते करते, यही बात है शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। विचार करते हैं जब तपा जाते हैं हम कौन थे, कौन हैं अभी। चंड कौशिक ने अपना स्वरूप जान लिया और भगवान के सामने वह समर्पित हो गया। भगवान ने कहा अब से तू अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, तेरा मुंह उल्टा रख करके अपने बिल में चला जा, और लोग जो भी उपसर्ग करें, मारे, उसको सहन कर ले। भगवान की बात मान ली, आज्ञा उठा ली, बिल में वैसे रह गया।
बाहर शरीर रह गया। ग्वालने आती थी, नाग देवता नाग बापा मान करके उस पर दूध डालने लगी, घी डालने लगी, दही डालने लगी, और वहाँ पर इसके कारण चींटियाँ आने लगी। चींटियों ने छलनी तरह शरीर बना दिया। प्राणी जो शरीर बनावी दीधું અને એ રીતે એ આખો ઉપસર્ગ બધો સહીને પોતે શાંત ભાવે સહેતો રહ્યો। સહેતા સહેતા શાંત ભાવને કારણે, પ્રભુની આજ્ઞાને કારણે શુભ પરિણામથી એ દેવલોકે ચાલ્યો ગયો, સ્વર્ગમાં ચાલ્યો ગયો। નહીં તો નરકગામી જીવ હતો, નરકે જનાર હતો। અહીંયા વાત મહત્વની એ છે, એના ક્રોધના પરિણામ કેટલાય જન્મોથી ચાલ્યા આવ્યા। આત્મસિદ્ધિમાં સુંદર ગાથા આવે છે। આત્મસુંદરી ગાથા ઘણું બધું કહી જાય છે। જીવની નિત્યતાની વાત છે, નિત્યતા છે જીવની ત્યાં। ક્રોધાદિ સંસ્કાર જે જીવ નિત્યતા ત્યાં છે। क्रोधादि संस्कार जन्मों से चले आवे छे। क्रोध के संस्कार एक नहीं अनेक जन्मों से चले आते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध हम कहते हैं, अनंतानुबंधी मान कहते हैं। और यहाँ पर चंडकोशिया की बात, ये नाग की बात जो हुई है, वैसी घटना इस काल में हुई। संक्षेप में कहकर हम आगे चलेंगे। बिल्कुल इसी काल में भगवान की उसी बिहार की भूमि में, बिहार के पास उत्कल की भूमि में, वहाँ पर एक जैन मुनि भगवान की आज्ञा का विचरण करते करते भगवान की तरफ मौन विचरते रहे थे। आज से करीब 50 साल पहले की सत्य घटना है। उनके साथ एक बड़े विद्वान संपादक जैन जर्नल मासिक के कलकत्ते के गणेश ललवाणी साथ में चलते हैं। गुरुदेव आपकी आज्ञा में है तो आपके साथ चलूँ मैं। उन्होंने कहा मैं तो मौन रहता हूँ, संकेत से कह दिया तुम चलना है चलो। गुरुदेव मौन चले और ये विद्वान ललवाणी जी उनके पीछे पीछे जाते जंगलों में, अकेले अपना काम कर लेते हैं। एक जगह इशारा किया गुरुदेव ने, देखो यहाँ एक नाग आता है, डरना नहीं उससे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसी रात जब वो ध्यान में खड़े रहे मुनि, भगवान की तरह कायोत्सर्ग ध्यान में, और ये बैठे रहे जाप करते हुए ये ललवाणी, उतने में सचमुच ही नाग आया। नाग ने आकर के न काटा किसी को, न छुआ किसी को। पहले तो खड़ा रहा, जैसे स्वयं खड़गासन में खड़ा हो मुनि के सामने, खड़ा रह करके 3 प्रदक्षिणाएं दे दी। 3 बार घूम करके वापिस चला गया। दंग रह गया ये ललवाणी विद्वान। उसने कहा दूसरे दिन, गुरुदेव ये कौन था नाग, क्या था? मौन में कहा पता चल जाएगा। 2 बार 3 बार 3-4 दिन नाग आता है। इसी प्रकार रात को जहाँ भी विहार करके जाते हैं आगे आगे, वहाँ जाकर के 3 बार घूमता है, प्रदक्षिणा देकर चला जाता है। तो कहा गुरुदेव रहस्य क्या है उसका? वो नाग ही तुम्हें बताएगा। और सच मुझे चौथे दिन नाग ने अपनी कहानी संक्षेप में कहनी शुरू कर दी। नाग की आत्मकथा नामक ये लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है। इसका रेफरेंस आपको दूंगा। और ये मित्र ललवाणी हमारे मित्र थे, उनसे हमने चर्चा की बाद में, उन्होंने सारी बात बतला दी, सही घटना बनी थी। तो उन्होंने कहा, नाग मुझे कहने लगा कि देखिए मेरा क्रोध इतना भयंकर था, मैंने इतना क्रोध और ज़ेर और द्वेष किया है उतना कोई कर नहीं पाएगा। मैं यहाँ कलिंग के युद्ध के समय सम्राट अशोक का सेनापति था। सेनापति के रूप में मैंने कितने ही लोगों का उच्छेद कर दिया था। मैंने इतने बड़े बड़े साधन बनाए थे, नरसंहारक जिसका नाम था रथकंटक वज्रमूषल। ये बना करके मैंने हजारों लाखों सैनिकों की जान ले ली, अनेकों को विधवा बना दी, अनेकों बच्चे बेचारे बेहाल रह गए, लाखों की संख्या में हिंसा घोर की मैंने। और फिर जब मैं मरा, हिंसा के, क्रोध के, द्वेष के परिणाम के साथ मरा लड़ाई करते करते, तो मैं दूसरे जन्म में नाग बना। उन्हीं लोगों ने मुझे मारा पीटा, मार डाला। तीसरे जन्म में फिर नाग बना। नाग बनता ही गया मैं, लोग मुझे मारते ही गए। मैंने भाव से सोचा मुझे कोई मुनि के दर्शन हो जाए, कहीं उद्धार हो जाए मेरा। सद्भाग्य कि मुझे ये मुनि मिले हैं, शांत मुझे करते हैं, बोलते कुछ नहीं है, परंतु मैं उनको देख करके बड़ी मुझे शांति होती है, शांति होती है। ये बात कह करके नाग चला गया, दोबारा फिर नहीं आया। ये नाग की आत्मकथा गणेश ललवाणी ने लिखी है। यहाँ भी बात यही थी कि पूर्व जन्म के संस्कार अनेक क्रोध के
वो आज भी चले आते हैं। मान के, माया के, लोभ के, कषायों के संस्कार एक जन्म के नहीं होते हैं। उनको हम अगर सत्पुरुष मिल जाएं भगवान महावीर जैसे, तभी हम काट सकते हैं, या तो बड़े पुरुषार्थ से अपने अंदर में गहरे उतर करके। हमारा सद्भाग्य नहीं हमारे सामने भगवान महावीर जैसे कोई महापुरुष हो, हमारा सद्भाग्य नहीं ऐसे कोई मुनि हो। भावना करें तो ऐसे मुनि कभी मिल जाएं, और हम भावना करें ऐसे हमारे क्रोध मान माया लोभ चले जाएं। एक महावीर जयंती के दिन माउंट आबू से अचानक ट्रंक कॉल में हमें हमारी दीदी विमला दीदी ने कॉल करके दिया, जिसका उल्लेख कल धनुष भाई ने किया था। विमला ठकार जैनतर होते हुए जैन साधना में गहरी उतर गई थी, और जैन साधना करते करते ही संथारा जैसा करते 8 दिन करके उन्होंने देह छोड़ा 1 साल पहले माउंट आबू में। उसके पहले की महावीर जयंती में कहा हमें फोन में, बड़ा याद रह गया है। सुंदर ध्यान दिया, महावीर जयंती थी, उन्होंने मंत्र दे दिया हमें जैसे वीतराग महावीर का, वीतराग महावीर का दिल में ध्यान लगाएं। वीतराग महावीर का दिल में ध्यान लगाएं। कषाय मुक्त मुक्ति पंथ पर कदम बढ़ाते जाएं। वीतराग महावीर का दिल में ध्यान लगाएं। कषाय मुक्त मुक्ति पंथ पर कदम बढ़ाते जाएं। वीतराग महावीर का दिल में ध्यान लगाएं। जिसने क्रोध जीता, मान जीता, माया जीती, कषाय जीते, विषय जीते, उनका ध्यान करने से हम भी उनके जैसे कषाय मुक्त हो सकते हैं। उनका ध्यान अपने आत्म संपदा को प्रकट करता है। यही संपदा यहां चंड कौशिक ने प्राप्त की। भगवान का ध्यान ध्याता रहा, अपनी आज्ञा को स्मरण किया उसने, और उसी भाव में उसने देह छोड़ा। भगवान ने उसे कितना बड़ा प्रेम दे। चंड कोशी जैसे भीषण नाग को, चंड कोशी जैसे भीषण नाग को, चंड कोशी जैसे भीषण नाग बुझाने वीर विहार करे, बुझाने वीर विहार करे। जहर भरे कई दंश दिए पर वे तो उससे प्यार करे। जहर भरे कई दंश दिए पर वे तो उससे प्यार करे, वे तो उससे प्यार करे। होश भूला, होश भूला, होश भूला एक ग्वाला वीर के, होश भूला एक ग्वाला कान में कीले मार चले। आत्म भाव को जानने वाला देह की ना परवाह करे, देह की ना परवाह करे,
देह की ना परवाह करूं, देह की ना परवाह करूं। देव और दानव पशु और मानव, देव और दानव पशु और मानव, प्राणी उसे कई दंश रहे, प्राणी उसे कई दंश रहे। हंसते मुख से महावीर फिर भी, हंसते मुख से महावीर फिर भी, मंगल सबका चाह रहे, मंगल सबका चाह रहे, मंगल सबका चाह रहे, मंगल सबका चाह रहे, मंगल सबका चाह रहे। चंड कौशिक का उपसर्ग और भयंकर उपसर्ग और तो अभी आते हैं। उपसर्गों के बीच भगवान की आत्म साधना, उनकी प्रसन्नता और उनकी सभी के प्रति मंगल की कामना ये चलती रहती है। भीतर में तो उनके भीतर इस परिस्थिति के प्रभाव से उदासीनता है और अंतर में उनका एक ही भाव है, अपनी शुद्ध आत्मा में कैसे कैसे मौन ध्यान की सुदीर्घ धारा के अभिग्रह और महाभिग्रह लिए हुए हैं। अभिग्रह ऐसे, महाभिग्रह ऐसे, और लेकर के प्रभु आगे चलते हैं। उनके घोराति घोर तप भी इस गहन आत्म ध्यान से सहज ही निकले। उनके विहार महाविहार भी इसी धुन में चले। उनके लिए ये आहार अति अल्प आहार भी अभिग्रहों की पवित्रता शुचिता में पले और ढले। सर्वत्र एक परम समता, प्रशम रस पूर्ण प्राण पराग की प्रफुल्लता, तीनों समितियों की अद्भुत अद्भुत सजगता, सर्वजीवों के प्रति बहती निष्कारण करुणाधारा। आहार का जय, निद्रा का जय, आसन का जय, साधनामय मार्ग के ये तीन प्राथमिक जय। 12.5 वर्ष की इस सुदीर्घ साधना यात्रा में प्रभु ने आहार भी कितना लिया, निद्रा भी कितने ली, आसन भी कितने दृढ़ लगाए रखे। कायोत्सर्गमय खड़गासन, ज्ञानमय पर्यंकासन, ओ देह की भिन्नता भरा केवल ज्ञान देने वाला गोदोही का आसन, मनसा प्याला, इन सभी के बीच इस तन का दीवा करूं, बाती मेलूं जीव, लोही सिंचू तेल ज्यूं, कब मुख देखूं पीऊं। तन का उन्होंने दीवा बना दिया है और तन का दीवा बना करके वे अपनी साधना करते रहे। इस तन का दीवा करूं, बाती मेलूं जीव, इस तन का दीवा करूं, बाती मेलूं जीव, लोही सिंचूं तेल ज्यूं, कब मुख देखूं फिर। मनसा प्याला प्रेम मसाला, मनसा प्याला प्रेम मसाला, ब्रह्म अग्नि पर जाली, ब्रह्म अग्नि पर जाली। मनसा प्याला प्रेम मसाला, मनसा प्याला प्रेम मसाला, ब्रह्म अग्नि पर जाली, ब्रह्म अग्नि पर जाली। तन भाठी अवटाई पिए कस, तन भाठी अवटाई पिए कस,
जागे जागे अनुभव लाली, जागे अनुभव लाली, जागे अनुभव लाली, जागे अनुभव लाली, जागे अनुभव लाली। तन भाठी को जलाकर, तन के दीप को प्रज्वलित करके यह आत्म ध्यान की अगन प्रभु ने जलाई थी, एक अखंड लौ अंतर में लगाई थी। और ऐसी लौ लगाई थी अंदर में, तभी कहीं प्रकट हो रही थी उनकी आत्मानुभूति की लाली। अभय अद्वेष अखेद भरी खुशहाली, गहरे अंतसागर से निकले इन आनंद रत्नों और मोतियों की थाली। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, स्वयं ज्योति सुखधाम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, स्वयं ज्योति सुखधाम। कर विचार शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। बीजू कहिए केट लूं, कर विचार कर ध्यान तो पाम। प्रभु इसी शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन में डूबे हुए थे और वहां उनकी अनुभव की लाली जाग रही थी। इस प्रकार प्रभु आगे चलते हैं निज धाम की ओर। निज धाम का उनका यह ध्यान कोई खाला का खेल नहीं था, बातों का शुष्क ज्ञान भरा कोरा अध्यात्म नहीं था। वह तो संतुलन और सम्मिलन था, निश्चय और व्यवहार दोनों का, उपादान और निमित्त दोनों का। इसी स्वस्थ समन्वित भाव से सदा सर्वत्र सारे ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी अपने स्वयं ज्योति आनंद धाम निज धाम का ध्यान लगाते लगाते उस ध्यान दशा में रहते हुए निहारते रहे, देखते रहे, दिखलाते रहे केवल एक आत्मा को, आत्मा की सहजात्मा की दशा को, सिद्धात्मा की दशा को। बस एक ही लौ प्रभु की, एक ही रटना, एक ही संज्ञान, मैं तो आत्मा हूं, जड़ शरीर नहीं। हूँ तो आत्मा छूं जड़ शरीर नथी, हूँ तो आत्मा छूं जड़ शरीर नथी, आत्मा छूं जड़ शरीर नथी, हूँ तो आत्मा छूं जड़ आत्मा छूं
જડ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, જડ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, જડ શરીર નથી. હું તો આત્મા છું, જડ શરીર નથી. શરીર મસાણની રાખને ઢગલી, શરીર મસાણની, રાખનો ઢગલો, શરીર મસાણ રાખનો ઢગલો, કળમાં વિખરે કળમાં વિખરે ઠોકરથી, આત્મા છું, શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, જડ શરીર નથી. આત્મા છું, શરીર નથી. હું તો આત્મા છું, જડ શરીર નથી. શાકે લૂણ દેખાય નહીં, પણ શાકે લૂણ દેખાય નહીં, પણ શાકે લૂણ દેખાય નહીં, પણ અનુભવાય એ સ્વાદ થકી, અનુભવાય હું તો આત્મા છું, જડ શરીર નથી. 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 આત્મા છું, જડ શરીર નથી. હું તો આત્મા છું, જડ શરીર નથી. આપણે ઝીલીશું બધા જ આ એક પંક્તિ ખાલી. હું તો આત્મા છું, જડ શરીર નથી. 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 હું તો આત્મા છું, હું તો આત્મા છું, જડ શરીર નથી. હું તો આત્મા છું, જડ શરીર નથી. હું તો આત્મા છું, જડ શરીર
स्वरूपी सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी विनाशी आत्मा छूं अविनाशी हूँ आत्मा हूँ अविनाशी आत्मा छूं अविनाशी हूँ आत्मा छूँ आत्मा छूं जड़ शरीर નથી तो आत्मा छूँ जड़ शरीर नहीं आत्मा छूं जड़ शरीर નથી तो आत्मा छूँ जड़ शरीर नहीं आत्मा छूं जड़ शरीर तो आत्मा छूँ जड़ शरीर नहीं आत्मा छूं जड़ शरीर નથી तो आत्मा छूँ जड़ शरीर नहीं तो आत्मा छूं जड़ शरीर નથી तो आत्मा छूँ जड़ शरीर नहीं तो आत्मा छूं जड़ शरीर નથી तो आत्मा छूँ जड़ शरीर नहीं तो आत्मा छूं जड़ शरीर નથી तो आत्मा छूँ जड़ शरीर नहीं आत्मा छूं जड़ शरीर નથી तो आत्मा छूँ जड़ शरीर नहीं અને આ આત્મદેશના જ આપણે નિવાસી છીએ। इस आत्मदेश के ही हम वासी हैं। हम ऐसे देश के वासी हैं जहाँ राग नहीं और द्वेष नहीं, जहाँ मोह नहीं और शोक नहीं। हम ऐसे देश के वासी जहाँ राग नहीं और द्वेष नहीं, जहाँ राग नहीं और द्वेष नहीं जहाँ राग नहीं और द्वेष जहाँ राग नहीं और द्वेष नहीं ऐसे देश के वासी हम ऐसे देश के वासी हैं आत्म देश के वासी हैं। हम आत्म देश के वासी हैं जहाँ मोह नहीं और शोक नहीं, जहाँ मोह नहीं और शोक नहीं जहाँ भेद नहीं और खेद नहीं, जहाँ भेद नहीं और खेद नहीं जहाँ भरम नहीं और चाह नहीं, जहाँ भरम नहीं और चाह नहीं जहाँ भरम नहीं और चाह नहीं, जहाँ भरम नहीं और चाह नहीं ऐसे देश के वासी हैं। हम ऐसे देश के वासी हैं आत्म देश के वासी हैं। हम आत्म देश के वासी हैं सबको है सब कुछ मिला हुआ, सबको है सब कुछ मिला हुआ
हर सौदा है तुला हुआ, यहाँ हर सौदा है तुला हुआ, सांचे में है ढला हुआ, एक सांचे में है ढला हुआ, कमी नहीं परवाह नहीं, कोई कभी नहीं परवाह नहीं। ऐसे देश के वासी, हम ऐसे देश के वासी हैं, हम ऐसे देश के वासी हैं, हम आत्म देश के वासी हैं, तुम देश के वासी हैं। हम आत्म देश के वासी हैं। और अपनी जिस आत्म देश की यात्रा में प्रभु लगे थे, जिस आत्मा को पहचानने और समग्रता में पाने के लिए वे चले थे, वह करीब करीब उनकी पहुंच के भीतर ही थी। सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा हूँ, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा हूँ। आत्म सागर के ध्यान में वे डूब गए थे, अपनी आत्मा के ध्यान में। हम मगन भये, हम मगन भये निज ध्यान में, हम मगन भये निज ध्यान में, हम मगन भये निज ध्यान मगन भये निज ध्यान में। बिसर गई दुविधा तन मन की, बिसर गई दुविधा तन मन की, अचिरा सुनी धुन ज्ञान में, अचिरा सुनी धुन ज्ञान में, मगन भये निज ध्यान में, मगन भये प्रभु ध्यान में। इतने दिन तू नाही पिछान्यो, इतने दिन तू नाही पिछान्यो, जन्मो गवायो अज्ञान में, जन्मो गवायो अज्ञान में। अब तो अधिकारी होई बैठो, अब तो अधिकारी होई बैठो, निज गुण अकलख दान में, निज गुण अकलख ध्यान में, मगन भये प्रभु ध्यान में, मगन भये प्रभु ध्यान में।
ध्यान में प्रभु डूबे रहे, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, चलते हुए भी, सर्वत्र सजग, सर्वत्र अंतर में स्थित, सर्वत्र उपयोगवंत, जयम चिट्ठे जयम चरे। प्रभु का कदम भी ध्यान था, प्रभु का प्रवर्तन भी ध्यान था, उनका कभी कभी भिक्षा लेना भी ध्यान था। सोना तो था ही नहीं, अगर सोना था तो भी ध्यान था। सारा ध्यानमय अंतर जीवन, मौनमय अंतर जीवन प्रभु का चलता है और सर्वत्र इस प्रकार प्रभु विचरण करते हैं। विशुद्ध आत्म ध्यान, घोर अति घोर उपसर्गों के बीच भी आत्म ध्यान, ऐसे उपसर्गों परिशहों तपस्याओं के साथ साथ चले और पले ध्यान को मानव इतिहास ने एक ही साथ और इतनी संख्या में न कहीं देखा है, न सुना, न दर्शाया। भगवान की जैसी तपश्चर्या, भगवान का जैसा ध्यान, भगवान का जैसा ज्ञान और विचरण इतिहास में शायद देखने मिलता है। बाहुबली, गज सुकुमाल महामुनि, स्कंधक मुनि आदि के ऐसे घोर उपसर्गमय ध्यान भी थोड़े ही या अल्प अवधि के ही थे। यहाँ तो भगवान महावीर का ध्यान, वो ध्यान देखते हुए, सोचते हुए दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभूतपूर्व अतिवीर महावीर उन घोराति घोर उपसर्गों, सतत लगातार ध्यानों और अखंड तपस्याओं, वीरस्य घोरम तवो, उसका स्मरण करते करते हम दंग रह जाते हैं। एक एक घटना, एक एक उपसर्ग देखते चले जाते हैं। पता लगता है कैसे कैसे उपसर्ग आए। शूलपाणी यक्ष के रात भर के उत्पातों, उपसर्गों और उसके साथ प्रभु के प्रातःकाल के 10 स्वप्नों, एक प्रसंग पहले आया। फिर चंड कौशिक के उपसर्गों के बीच बुझ बुझ वाला प्रसंग आया और आगे चल करके चौराग के पहरेदारों, राढ़ देश के अनार्य लोगों, कुपई के ग्रामजनों के प्राणांत कष्ट आए और आगे दृढ़ भूमि के बेढाल उद्यान में संगमक देव ने काल चक्र, वाद चक्र और सिंहादि नाद के 20 उत्कृष्ट मरणांत उपसर्ग किए। यहाँ पर शूलपाणी यक्ष की कथा छोटी सी देखते हैं तो पता चलता है उसकी पूर्व जन्म की कथा एक छोटी सी जो बेल की कथा है। धनदेव वणिक का वह बेल है और धनदेव के वणिक के बेल को 500 वाहनों का भार उठाना पड़ा था वणिक सेठ की सेवा के लिए, और 500 वाहनों का बोझ भार उठाते उठाते उसके बेचारे के कंधे टूट गए थे। कंधे टूट करके वो बेहोश हो गया, रक्त की उल्टियां होने लगी और गिर पड़ा। सेठ को आगे जाना था, उसको ले जा नहीं सकते थे, बीमार शरीर को बेल को वहीं छोड़ दिया। वो जो गांव था उसके लोगों से कहा कि आपको दाने पानी के लिए पैसे देता हूँ, दाने पानी से बेल की रक्षा करना, पानी पिलाना, दाना खिलाना, बेचारी की सेवा करना। बहुत धन दिया और निरुपाय से छोड़कर जाना पड़ा, चला गया। गांव के लोग धन के लोभी, एक पैसा भी उसके लिए दिए हुए खर्च नहीं किया। शूलपाणी तो बाद में बनता है, यहाँ बेल बेचारा एक पैसे की सेवा नहीं पाता है, न धान पाता है, न पानी पाता है। और इस प्रकार इसी चिंता में ही, इस आर्त ध्यान में ही वो वहीं बेचारा मृत्यु को प्राप्त करता है। मौत को पाकर के ऐसे भावों के साथ मरा है, वो व्यंतर देव बनता है और व्यंतर देव बन करके उस गांव के सारे लोगों को परेशान करता है, बेर का बदला लेता है। आप लोगों ने मुझे पानी नहीं दिया, दाना नहीं दिया, मेरे पैसों से आपने डुबा दिया। और लोग तो बड़े परेशान हो गए, अनेक लोग मरने लगे। मरते 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 ढेर बन गया गांव के लोगों, मुर्दों का, अस्थियों का ढेर। गांव का नाम पड़ गया अस्थिक ग्राम। अस्थिक ग्राम में इतने ढेर लग गए और चलते रहे उपद्रव। लोग गांव छोड़कर भाग गए, फिर भी उसने उपद्रव छोड़े नहीं। लोग ने प्रार्थना की व्यंतर से भी, हमें क्षमा करो, तुम कौन हो, क्या करते हो? बोलते मैं वही बेल हूं जिसको तुमने दाना पानी नहीं दिया, अब मेरा मंदिर बनाओ यहाँ पर।
और मेरा प्रायश्चित करो और इसी ढेर पर बनाओ। अस्थि का ढेर बना, हड्डियों का ढेर, हड्डियों के ढेर पर शूलपाणी यक्ष का मंदिर बनाया। मंदिर बना करके लोग उसकी थोड़ी कुछ मान्यता करने लगे, फिर भी वो तो उपद्रव करता ही रहा। इतने में प्रभु महावीर वहां पधारे। प्रभु पधारते हैं चंड कौशिक की तरह इसका भी उद्धार करने के लिए। ये भी बेचारा क्रोध के बाद क्रोध करता जा रहा था, उसको क्षमा कर देनी चाहिए थी, ग्राम लोगों के लिए क्षमा नहीं कर रहा था, अनेकों को मार रहा था। और तब प्रभु ने सोचा ये बेचारा इस प्रकार करता रहेगा, नरक गति को प्राप्त होगा। प्रभु उसी का उद्धार करने के लिए आए। लोगों ने कहा प्रभु उस यक्ष के मंदिर में मत जाइए, सबको मार डालता है। प्रभु तो मौन रहे, उसी मंदिर में ध्यान रहे शूलपाणी के यक्ष के। शूलपाणी ने भी रात को अनेक उपद्रव किए प्रभु पर, मरणांत उपद्रव किए, उपसर्ग किए। और फिर अंत में प्रभु ध्यान में रहे। उस समय प्रभु को 2 घड़ी नींद आ गई खड़े खड़े ही। उसी प्रभात की नींद में प्रभु ने 10 स्वप्न देखे। 10 स्वप्नों का संकेत यहाँ मिलता है, अद्भुत स्वप्न है। उनमें से 2 स्वप्नों की बात वहाँ शेमिल निमित्या आता, उसको प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं 2 स्वप्न आए हैं, उसका अर्थ तुम बताओ। निमित्या अर्थ बतलाने जाता है, उसमें 2 का अर्थ बता नहीं सकता है। 2 में बात आती है कि वहाँ पर 2 कोकिल, 2 कोयल का उन्होंने दर्शन किया है। 2 कोयल भगवान की सेवा करते ऐसा बताया है। तो निमित्या कहता है कि भगवान आपके स्वप्नों का उत्तर अर्थ निकाल नहीं पा रहा हूँ, ये दोनों आपकी सेवा करते 2 कोयल, उसका अर्थ क्या हुआ? 2 कोयल यानी 2 कोकिल यानी 2 समूह मेरी सेवा करेंगे, साधु साध्वी एक ओर से और श्रावक श्राविका दूसरी ओर से, गृहस्थों का समूह और त्यागियों का समूह, दोनों मेरी सेवा करेंगे। ये बात करते करते प्रभु वहाँ से आगे विहार करते हैं। शूलपाणी यक्ष की कथा के बाद प्रभु और आगे जाते हैं और घटनाएं घटती हैं प्रभु के जीवन में। और ये घटना देख करके अनेक लोगों को आश्चर्य होता है। और प्रभु इस घटना के बाद आगे चलते हैं लाट देश में। और यहाँ पर जहाँ कोई लोग जाते नहीं हैं, जहाँ ज़्यादा उपद्रव होते हैं, जहाँ कोई बचाने वाले नहीं हैं, कहीं तो उनको पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा की साध्वियाँ बचाती हैं, कहीं और लोग बचाते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रदेश में जाते हैं कोई बचा न सकें और उनको अवसर ज़्यादा मिले, ज़्यादा तकलीफ आ जाए, ऐसे स्थानों पर प्रभु जाते हैं। तो यहाँ जाकर के धीरे धीरे प्रभु त्रिपुष्ट भव की अपमानित जो रानी थी उनकी, उसके पास पहुँचते हैं। कठपुतना नाम है उसका व्यंतरी का। वो शीत जल का, ठंडे जल का इतना अवसर करती है, इतना अवसर करती है कि दूसरा कोई तो वहाँ पर प्राण छोड़ दें, ऐसा उपद्रव होता है। और बाद में धीरे धीरे ग्वाले द्वारा 6 माह तक भीतर में कान में कीले ठोकने का उत्सव होता है। इसका भी उल्लेख देते हैं त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में। अपने पूर्व जन्म में प्रभु ने जब राजा थे, संगीत गान सुन रहे थे और गान गाते गाते सुनते सुनते उनको निद्रा लेनी थी। कह दिया था सेवकों को अगर मुझे निद्रा आ जाए तो गान बंद कर देना। निद्रा तो प्रभु राजा को आ गई। लोगों ने गान बंद नहीं किया और लोग अपने मजाक के लिए गान करते रहे। तो गान करने वाले निकट के लोगों के प्रति जब उठ करके गुस्से में क्रोध में आ गए और गान सुनने वालों को तुमको गान बड़ा प्रिय है, इसलिए लो कानों में शीशा डलवा दिया। कानों में शीशा डलवाया, उससे बड़ा घोर कर्म उपार्जित हुआ। वही कान में शीशा जिसको डाला था वही यहाँ पर ग्वाला बन करके कान में कीले ठोकने आता है और प्रभु को कान में कीले ठोकते हैं। और ये सरकट वृक्ष के कीले केवल 1-2 नहीं 6 महीने तक प्रभु के कान में रहते हैं। कान में दोनों से कीले लगे हुए हैं, फिर भी प्रभु चिंता नहीं करते, विहार करते रहते, ध्यान में लीन है। ऐसा ध्यान का उपद्रव, एक थोड़ा कीला लग जाता है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। 6 माह तक रहते हैं, वैद्य आते हैं, देख लेते हैं, निकालते हैं, तब प्रभु से बड़ी चीख निकल जाती है और संरोहिणी औषधि से प्रभु का ये दुख दूर होता है, कानों के उपसर्ग का। इस प्रकार प्रभु ने इस प्रकार के कितने उपसर्ग और कितने परिसर सहन किए और सहन करने के बाद उनकी सभी
से प्रेम पूर्वक, मौन पूर्वक, क्षमा पूर्वक यात्रा चलती रही। कतार के कतार चले लगातार, जैसे वर्षा अनराधार, अकेले, असंग, बिना किसी आधार के, एक स्वयं का ही आधार। इंद्र बीच में आया था, शुरू में आया था सेवा करने के लिए। प्रभु ने मना कर दी थी। तीर्थंकर अपना केवल ज्ञान इंद्र की या किसी की सहायता से प्राप्त नहीं करते, अपने स्वयं पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं। रोक दिया था इंद्र को। तो यहाँ पर ऐसी अपनी अखंड अपनी साधना, उसमें उन्होंने अनुभव ये किया और जगत को अनुभव करा दिया कि अहो अनंत वीर्यम अयम आत्मा, अहो अनंत वीर्यम अयम आत्मा। अपनी आत्मा की शक्ति अनंत है। अनंत शक्ति के द्वारा ये आत्मा अपनी सारे क्रियाकलाप करती है और अनंत शक्ति के साथ उनका ये सर्वोदय तीर्थ का महाशासन चलने वाला था। इस अतुल तीर्थ प्रवर्तन के ही गुणगान गाने वाले थे सूर असुर, इंद्र महेंद्र, बुधजन अबुधजन, निखिल भुवन के लोग। वीरः सर्व सुरासुरेंद्र महितो, वीरम बुधा संस्कृता। वीरः सर्वसुरासुरेन्द्र महितो, वीरं बुधा संश्रिता। वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः। वीरा तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं, वीरस्य घोरं तपो, वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचय, श्रीवीरभद्रं दिश, श्रीवीरभद्रं दिश। अपने अनंत आत्म संकल्प और आत्म सामर्थ्य से सहे झेले हुए अनेक अनेक उपसर्गों में मध्यम था ग्वाले द्वारा कानों में शकट वृक्ष के कीले ठोकना और वैद्य द्वारा 6 माह बाद निकाले जाने एवं चिख निकल पड़ने का उपसर्ग। और उत्कृष्ट थे संगमक देव के 20 काल चक्र, वात चक्र आदि उपसर्ग एवं प्रभु के पीछे पीछे घूमने वाले गौशाला द्वारा छोड़ी गई भीषण तेजोलेश्या, अग्नि की प्रचंड प्राणघातक असीम उद्दंड धारा का उपसर्ग। अंतहीन नोहे तो अंधकार, कठिन आघाते भेंगे छे बंध द्वार। अंधकार कहाँ होता है अंतहीन, विभाव अनादि का कहाँ टिकने वाला होता है। ज्ञान प्रकाश के सन्मुख वो टिक नहीं पाता। जेम विभाव अनादि नो ज्ञान थता दूर था। अब थोड़ी ही देर थी इस कैवल्य प्रकाश के प्राकट्य की, कैवल्य ज्ञान के प्राप्ति की। और प्रभु इस प्रकार ध्यान और महातपस्या करते करते, विहार करते करते कौशाम्बी नगरी में पधारे, जहाँ प्रतीक्षा कर रही थी चंदनबाला। बड़ा अद्भुत है इतिहास इस राजकुमारी का, वैशाली नगरी में बेची गई एक नारी का। ग्रंथ गवाह है, ग्रंथ गवाह है कि 5 माह 25 दिन के उपवासी भविष्यदर्शी महावीर का यह अभिग्रह था, यह संकल्प था कि जब तक एक उच्च कुल की फिर भी कर्मवश दासी बनी हुई, मुंडित केश, बंदी शरीर और रोती हुई आंखों वाली अबला हाथों में उड़द लिए भिक्षा देने द्वार पर प्रतीक्षा करती न मिले, तब तक वे किसी से भिक्षा नहीं लेंगे। वही नारी थी चंदनबाला। चंदनबाला
अद्भुत है इतिहास। चंदन बाला तेरा अद्भुत है इतिहास। चंदन बाला तेरा अद्भुत है इस इतिहास के पृष्ठ पृष्ठ पर इस इतिहास के पृष्ठ पृष्ठ पर प्रगटे दिव्य प्रकाश। प्रगटे दिव्य चंदन बाला तेरा अद्भुत एक दिन थी तू राजकुमारी, एक दिन थी तू राजकुमारी, राजमहल में बसने वाली, राजमहल में बसने वाली, राशि होकर भीग गई पर, राशि होकर भीग गई पर, बनती ना चंदन बाला तेरा अद्भुत है इतिहास। चंदन बाला तेरा अद्भुत है इतिहास। दुखों का कोई पार न आया, दुखों का कोई पार न आया, फिर भी अड़ीग रही तुझ काया। फिर भी अड़ीग रही तुझ काया। कर्मत सो की करे भयंकर, कर्मत सोई करे भयंकर, फिर भी हरि न निराश। चंदन बाला तेरा अद्भुत है इतिहास। चंदन बाला तेरा अद्भुत है वीर प्रभु को इसी अवस्था में दे दी भिक्षा, और प्रभु ने भविष्य में ठान ली उनको देने की दीक्षा। चंदन बाला की कथा सारी हम जानते हैं, संक्षेप में ही अस्थायी समापन करने का आ रहा है, इसलिए इतना ही कहेंगे कि बेची गई थी जब, और आज भी बेची जा रही ऐसी नारियां जब, तब यहाँ पर भगवान ने नारी के उद्धार का, नारी के उत्थान का एक बहुत बड़ा आदर्श दे दिया कि यहाँ चंदनबाला को बचा करके, जो कि बेचने के बाद उसकी माता ने तो शील रक्षा के लिए जीभ कुचल करके ले ली थी, कर ली थी आत्महत्या। और चंदनबाला बिकने के बाद पहुंची है धनावत सेठ के घर,
और वहाँ मूला सेठानी उनको उपद्रव देती है। ईर्ष्यावश सेठ बाहर गए हैं, उनको रख देते हैं कैद कोठरी में, केस मुंडवा देते हैं, बेड़िया पहनवा देते हैं और खाने के लिए थोड़े उड़द सूखे हुए दे देते हैं। तब भी बेचारी रोती भाव करती है, कोई मुनि आ जाए तो उसे मैं उड़द दे दूं, भिक्षा दे दूं। और तब प्रभु पधारते हैं। प्रभु ने अभिग्रह लिया था, सारा पूरा हो रहा था, एक रोना नहीं था, आंख में आंसू नहीं थे। प्रभु वापस लौट गए और चंदन बाला रो पड़ी। तो फिर से प्रभु का अभिग्रह पूरा हुआ, प्रभु वापस लौटे और चंदन बाला से भिक्षा ले ली। भिक्षा ही नहीं, भविष्य की दीक्षा की गांठ बांध दी और चंदन बाला भविष्य में बनती है उनकी प्रधान साध्वी। यहाँ उनका इतिहास आगे चलता है और यहाँ से प्रभु अभी पधारने वाले हैं, जहाँ पर उनका अंतिम केवल ज्ञान का प्रसंग आ रहा है। वहाँ पर पहुँचेंगे सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी के भाव के साथ आत्म भावना की। तो प्रभु यहाँ पर पहुँचे हैं धीरे धीरे अपनी उद्देश्य सिद्धि की ओर, और यहाँ वे घोर परिसरों का पार करते हुए आत्म भावना में लीन होते हुए वे आते हैं अपने उद्देश्य सिद्धि के द्वार पर, और जहाँ पर उनके पास पहुँचता है सारा वे लक्ष्य उनके पास। इस लक्ष्य के साथ प्रभु ने अपने जो उद्देश्य को पाना था उसको पाने के लिए उसी स्थान पर पहुँचे हैं। शायद यहाँ उसका चित्र भी है, वो चित्र लगा हुआ है पीछे। पहुँचे हुए प्रभु रुजुवालुका नदी के तट पर श्यामक नाम के किसान के खेत में शाल के वृक्ष के नीचे प्रभु प्रातःकाल से पहले प्रहर से ही सूर्योदय से बैठ गए हैं वहां पर गोदोही का आसन में। गाय को दोहते हैं वैसे ऐसा आसन, गोदोही का आसन में दो पैरों पर प्रभु आतापना लेते लेते बैठे हैं। एक प्रहर, दो प्रहर, तीन प्रहर बीत जाते हैं। 3 बजे करीब करीब 9 घंटे उनके पूरे हो जाते हैं। 9 घंटे एक ही आसन में प्रभु बैठे हैं। गोदोही का आसन में कोई आसान आसन नहीं है। योगासन करने वाले जानेंगे कि ये आसन करना आसान नहीं। 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते इस आसन में, करके देखेंगे। प्रभु 9 घंटे बैठते इसी आसन में, बाहर से इसी आसन में हैं और भीतर से शुक्ल ध्यान का चौथा चरण चल रहा है। इस चौथे चरण में वे पाते हैं जिस अपनी शुद्ध आत्मा का भाव, और शुद्ध आत्मा के भाव में वे लीन होते हैं। वहां पर सारे संगों से मुक्त हो गए हैं, मन वाणी कर्म से मुक्त हो गए हैं। शरीर के आसन में रहते हुए भी शरीर से भी मुक्त हो गए हैं। मनोयोग, वचन योग, काय योग, तीनों योगों के पार, इंद्रियों के भी प्रदेशों के पार, 10 प्राण के शरीर के पार, 10 प्राणों के पश्चात आसीन हुए हैं अपने शुद्ध आत्मा के चतुर्थ चरण के ध्यान में, जिसमें एकत्व भावना है। एकत्व भावना, पृथकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व भिन्नत्व, भिन्नत्व का भाव प्रभु करते हैं। भिन्नत्व का भाव करते हुए वे भावना दृढ़ करते हैं, मैं सभी से भिन्न हूं।
शरीर मन वाणी से तो भिन्न हूं, इस पृथ्वी से भी भिन्न हूं, पंच महाभूतों से भिन्न हूं, इस आकाश पवन से भिन्न हूं सबसे सर्व संगों से, भिन्न छूं सर्वथी सर्व प्रकारे, 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 सर्वथी सर्व प्रकारे, मारू कोई न संगी संसारे, मारू कोई न संगी संसारे, भिन्न छूं सर्वथी सर्व प्रकारे, सर्वथी सर्व भिन्न छूं सर्वथी सर्व प्रकारे, બધા ઝીલીશું એક લાઈન એક પંક્તિ. ભિન્ન છું સર્વથી સર્વ પ્રકારે, सर्वथी सर्व प्रकारे, भिन्न छूं सर्वथी सर्व प्रकारे, सर्वथी सर्व प्रकारे, भिन्न છું સર્વથી સર્વ પ્રકારે, भिन्न छूं सर्वथी सर्व प्रकारे, સર્વ પ્રકારે, भिन्न छूं सर्वथी सर्व प्रकारे, भिन्न છું સર્વથી સર્વ પ્રકારે, भिन्न छूं सर्वथी सर्व प्रकारे, 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 भिन्न छूं सर्वथी सर्व प्रकारे. पृथकत्व वितर्क विचार का ये ध्यान प्रभु का चला और ये ध्यान धीरे 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 दृढ़ हो गया और प्रभु ने इस ध्यान में, इस आसन में, इस ध्यान में सागर की गहराई में उतरते उतरते पारदर्शी अनुभूति की, मैं सभी संगों से भिन्न हूँ, केवल चैतन्य स्वरूपी हूँ, चैतन्य स्वरूपी शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, विशुद्ध स्वयं पूर्ण असंग परिशुद्ध आत्मा ही मेरा स्वरूप है. अप्पा सो परमप्पा, परिशुद्ध आत्मा ही मेरा स्वरूप है. एगो हम शुद्धात्म रूपो हम, सर्वथा भिन्नो हम, एगो हम सर्वथा भिन्नो हम, शुद्धात्म रूपो हम. इस भावना में दृढ़ होते होते प्रभु लीन हो गए और इस लीन होते ही उनको प्रकट हुआ जिसका उनको आधार था केवल ज्ञान. आत्म भावना भावता
जीव लहे केवल ज्ञान रूप। भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता जीव रहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता जीव लहे 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 केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता रहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता रहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भाव केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता रहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। इसी आत्म भावना में हम इस अंत के 5 मिनट बैठेंगे, आज का समापन करेंगे। 5 मिनट आत्म भावना में लीन प्रभु का ध्यान धरते हुए। शांति शांति शांति। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः। मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने स्तूयमाने ध्यानमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां प्रधानम् आत्मधर्माणां जैनं जयति शासनम्। ओम शांति शांति शांति। महावीर स्वामी भगवान की जय।
ओ